हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी नंबर 2। ठीक है, चलो तो पहले देख लेते हैं कि केस स्टडी कितनी बड़ी है। 2 पेज से ज़्यादा होगी तो पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे, फिर केस स्टडी रीड करेंगे। और 2 पेज से कम की होगी तो पहले केस स्टडी रीड करेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो ठीक है, 2 पेज से कम की केस स्टडी है तो पहले हम केस स्टडी रीड कर लेते हैं। ओके। An article singing themes for India's space tech startups appeared in the New York Times recently. The article underlined that India has become home to many such startups. It pointed out that space technology is fulfilling smaller scales and commercial purposes like helping farmers in timely insurance of their crops. Space technology is also helping commercial fishing fleets in tracking their catch by sending images back to Earth. Satellites are bringing phone signals to country's remotest corner and are helping in operation of solar farms far away from India's mega cities. It is also one of the India's most sought after sectors for venture capital investors. Startups are mushrooming in different sectors of India's economy as varied as education, health, agricultural, fintech, blah 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 blah. Economic survey for the year 22-23 highlights that by capitalizing on the digital infrastructure support, India has also emerged as one of the world's most vibrant destination for startups ecosystems. Startups are being envisioned as the spine of new India. In fact, India is home to world's third largest startup ecosystem. ये दोनों पैरास तो बिल्कुल हमारे ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट की बुक की तरह यूजलेस थे। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया इनको पढ़ के, बस इतना समझ आया कि हाँ कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। थर्ड पैरा की तरफ आते हैं। Grofine is an edtech startup incorporated as a private company in April 2023. ठीक है, the founder of a startup believes that some benefits are available to startups under income tax law. अच्छा, however they are unaware about the nitty-gritty of the same as they are from engineering and management background. ठीक है, तो हम है ना समझाने की nitty-gritty. The company had launched its product in the year 23-24 itself and had a turnover of 20 crore. ठीक है, it is recognized by DPIIT and holds a certificate of eligible business and is recognized as a technology driven startup by competent authority. ठीक है, इसको पढ़ के कुछ याद आया? इससे रिलेटेड ना एक सेक्शन हमारे DT में होता है, डिडक्शंस में, ATISC, उसमें ऐसा कुछ बोला जाता है कि एलिजिबल स्टार्टअप होती हैं उनका ना इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 16 से 1 अप्रैल 24 के बीच में हो जाना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। ग्रोफाइन हैज इशूड शेयर्स टू सर्टेन इन्वेस्टर्स who are familiar with founders of this edtech startup during the year 23-24. They believe in the business idea of the founders of the company and have decided to invest money out of their own resources. अच्छा, मतलब एंजल इन्वेस्टर्स हो गए तो, क्योंकि ये अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, फाउंडर से भी फैमिलियर हैं और उनके बिजनेस आइडिया को भी बिलीव कर रहे हैं, तो ये कौन होगा? एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, द startup Grofine has issued equity shares having face value of rupees 10 per share to these individual at rupees 50 per share during the year 23-24. The fair market value of the equity share of the startup as on valuation date is 11 per share. अच्छा, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर उसने 50 रुपए पे इशू कर दिया और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 11 रुपए है, यानी फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा के दाम पे उसने इशू किया है शेयर को। तो प्रीमियम पोर्शन IFOS में टैक्सेबल होता है ना। क्लोजली हेल्ड कंपनीज अगर अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती हैं तो प्रीमियम पोर्शन IFOS में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो DT का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। Grofine is still in nascent stages. However, it has already launched its product and has entered a segment of the market. The market has a considerable potential for companies' business to grow.
Startup not only need finance, but they also require favorable, conducive ecosystems to grow. It includes not only hand-holding at the time of germination of business idea, but also policy measure having a legislative backing. In India, relaxation and benefits have been provided to startup under various laws like Income Tax Act and Companies Act. मतलब इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है. चलो. Growfy needs talented and skilled employees for its business. However, the company is not in position to pay high cash salary. मतलब औकात नहीं है कंपनी की, लेकिन चाहिए skilled employees. ठीक है. To attract and retain employees, it is therefore considering route of employee stock option plans. मतलब ESOPs दे करके employees को लुभाना चाह रही है कंपनी. Employee stock option plans provide a chance to employees to become shareholders in the company and also be benefited by its future growth. The company plans to draft an ESOP scheme containing matters relating to grant of option, vesting period, and manner of determining exercise price, among others. The company is approaching many talented persons for assuming various senior roles in organizational setup. One such senior person, Mr. X, has shown interest in joining the company. लग गई Mr. X की. However, he is skeptical regarding income tax implication pertaining to ESOPs. अच्छा, he has a doubt that it may lead to withholding tax by startup, impacting his immediate enhanced salary. Mr. X को क्या लग रहा है कि जो ESOP स्टार्टअप देने वाली है उस पर TDS कट सकता है, जिसकी वजह से मिस्टर एक्स की जो इनहैंड सैलरी है वो कम रह जाएगी. ठीक है, देखेंगे इसके बारे में. Growfine is planning to merge another startup company engaged in similar line of activity to increase its size, revenue, and scalability. However, founders of the company are clueless regarding modalities of the same under relevant laws. अच्छा, तो कंपनीज एक्ट में मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड एक सेपरेट प्रोविजन होता है स्टार्टअप्स के लिए. सेक्शन 233 होता है कंपनीज एक्ट में, फास्ट ट्रैक रूट ऑफ एमालगमेशन वाला. ठीक है, वो एप्लीकेबल होता है स्टार्टअप्स के ऊपर या जो स्मॉल कंपनीज हैं उसके ऊपर, या अगर एक होली ओन्ड सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का आपस में मर्जर या एक्विजिशन हो रहा है तो वो वाला सेक्शन इसके ऊपर लग सकता है. उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Valuation of startup is often required for bringing in investment. Valuation of a startup is dependent upon its future growth and prospects. It is also quite likely that such a business has never been tested before. It only lies in realms of future. Another problem in startup valuation is totally new and non-comparable business products and strategies. Startups also depend upon many rounds of funding. Growfine may also approach another set of investors in further rounds of funding. यानी कि स्टार्टअप की वैल्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, चलो केस स्टडी हमने पढ़ ली है, अब हम इसके क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं. From the description given in case study relating to finance brought by individual from their own resources and whose belief in promoting affordable education to all in the country and also improving its standard is aligned with mission of founders, which type of finance for a startup is being referred to? अरे एंजल इन्वेस्टर्स. अरे देखा था ना ऊपर, सुनो ये देखो, यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे ना अपने, और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना खुद का फंड यूज़ किया था, तो हमने बोला था कि एंजल इन्वेस्टर्स हैं, तो एंजल इन्वेस्टर ही आंसर होगा उसका. कहाँ है एंजल इन्वेस्टर? ये रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, बूटस्ट्रैपिंग क्यों नहीं होगा? बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये अपना खुद का पर्सनल फाइनेंसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है, या जो नई कंपनी होती है उसके ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ को यूज़ किया जाता है, तो इसलिए बूटस्ट्रैपिंग नहीं होगा. बूटस्ट्रैपिंग के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे आपका ट्रेड क्रेडिट हो गया, ठीक है, या आपकी फैक्टरिंग हो गई, लीजिंग हो गई, ये सारे एग्जांपल होते हैं बूटस्ट्रैपिंग के, तो बूटस्ट्रैपिंग होगा नहीं. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होता है कि ये ना बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि हमारे एग्जाम्पल में इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यूज़ किया था, तो इसलिए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी नहीं होगा. फैक्टरिंग क्यों नहीं होगा? फैक्टरिंग का मतलब डेटर्स को सेल करना, और दूसरा फैक्टरिंग
बूटस्ट्रैपिंग का एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इसीलिए फैक्टरिंग भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, ओके। अच्छा, मैं ना ये रीड नहीं कर रही हूँ आंसर्स, इसका ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने रीड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The founders of GrowFind believe that some benefits are available to startups. Considering the description provided in case study, which of the following statement is in accordance with the provision of income tax law? कभी कभी ना क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो ऐसे टाइम पर हमें ऑप्शंस भी देख लेने चाहिए, ठीक है। तो अब ऑप्शंस रीड करते हैं। कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ इट्स प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस फॉर एनी 5 consecutive years आउट ऑफ द 10 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा सुनो, इनकम टैक्स में डिडक्शन होता था ना, वही जो अभी हमने देखा ATIAC वाला ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ATIAC में क्या होता है कि जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं वो जिस साल में इनकॉर्पोरेट हुई हैं वहाँ से 10 ईयर्स के पीरियड में से किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए 100% प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं, ठीक है। कौन कर सकती हैं, एलिजिबल स्टार्टअप्स। और एलिजिबल स्टार्टअप्स कौन होती हैं, वही जो 1 अप्रैल 16 से 1 अप्रैल 24 के बीच में इनकॉर्पोरेट हुई, या जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है या 100 करोड़ तक का है, और जिनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस है इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का। तो ऐसी कंपनीज ATIAC का डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया क्योंकि 75% डिडक्शन की बात कर रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ इट्स प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस फॉर एनी 3 consecutive असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द 10 year बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड। फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस इन दिस रिगार्ड इज प्रोवाइडेड बाय इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्शन एट द रेट ऑफ 75। अरे यार हद है, इतना गलत कोई कैसे हो सकता है, मतलब 75% कहाँ होता है। डी ऑप्शन क्या है, कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100% फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस फॉर एनी 3 consecutive years आउट ऑफ द 10 year बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस इन दिस रिगार्ड इज प्रोवाइड बाय CBDT। अरे यार हद करते हैं, CBDT से नहीं लेना होता सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन चाहिए होता है इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से। तो ये ऑप्शन भी गलत है, करेक्ट क्या हुआ, बी ऑप्शन। लेट्स चेक द आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। रीड कर लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, as regards doubt of Mr. X regarding withholding tax in relation to ESOP is concerned, which of the following statement is most appropriate? तो दोस्तों एक सेक्शन होती है इनकम टैक्स में, सेक्शन नंबर 192(1)(c। इसमें क्या होता है कि ईसॉप्स को ना परक्यूसिट्स के बराबर माना जाता है और इसीलिए ईसॉप्स पर भी स्लैब रेट पर TDS काटा जाता है, ठीक है। यानी कि मिस्टर एक्स का भी कटेगा, TDS कटेगा। लेकिन जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होती हैं ATIAC में जो एलिजिबल स्टार्टअप होती हैं वही वाली एलिजिबल स्टार्टअप्स को एक रिलैक्सेशन दिया जाता है सेक्शन 192(1)(c) में कि वो TDS के डिडक्शन को डेफर कर सकती हैं। डेफर मतलब कि कटेगा तो ज़रूर, लेकिन आज ना काट करके कुछ सर्टेन इवेंट्स हैं, जब वो इवेंट अकर होंगे उनके अकर होने पर TDS डिडक्ट होगा, ठीक है। कौन से इवेंट हैं वो समझ लेते हैं, आ जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यस, तो जिस साल में ESOPs इशू हुए वहाँ के एंड से 48 मंथ्स जब एक्सपायर हो रहे हैं तब, या फिर वो जो सिक्योरिटीज़ थी जो ESOPs थे उनकी सेल कर दी एम्प्लॉय ने तब, या फिर एम्प्लॉय कंपनी ही छोड़ करके चला गया तब। इन 3 इवेंट्स में से जो भी इवेंट जल्दी अकर हो जाएगा, अर्लीस्ट अकर हो जाएगा,
उस डेट से 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि कटना तो ज़रूर है मिस्टर एक्स का टीडीएस, लेकिन आज ना कट के वो एक टाइम बाद कटेगा। ये जो इवेंट्स अगर होंगे इनके बाद कटेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। इनकम टैक्स वुड बी हेल्ड एट रेट इन फोर्स व्हेन ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड एंड शेयर्स आर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स। नहीं यार, ग्रोफाइन हमारी एलिजिबल स्टार्टअप है ना, तो इसलिए अभी नहीं कटेगा, डेफरमेंट दिया जाएगा उसको, तो ये ऑप्शन गलत है। द कंपनी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस। Income tax would not be withheld when option is exercised and shares are allotted to Mr. X as such transaction are exempted from withholding tax। हद है यार, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा कटेगा ही नहीं। कटेगा भाई, कटेगा, ज़रूर कटेगा, लेकिन आज ना कट के थोड़े टाइम बाद कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। The company is an eligible startup holding certificate of eligible business. However, such startup is allowed to defer withholding tax when option is exercised and shares are allotted to Mr. X. It is deducted in required manner after expiry of certain timelines or happening of certain events. बिल्कुल ठीक, इसी ऑप्शन का तो हमें इंतज़ार था, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। डी ऑप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। इनकम टैक्स वुड बी विदहेल्ड व्हेन ऑप्शन इज ग्रांटेड। नहीं, चल ऐसे थोड़ी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4th। The startup is planning merger with another startup engaged in similar activities. Which of the following statement is in line with provision of law regarding proposed merger of these startup? ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 233 होता है जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उनको एक ऑप्शन दिया जाता है मर्जर एंड अमालगमेशन से रिलेटेड कि वो अगर चाहें तो फास्ट ट्रैक रूट को फॉलो कर सकती हैं मर्जर के लिए। इसमें उनको कंडीशंस क्या सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो ना ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों कंपनीज प्रपोज्ड स्कीम का नोटिस भेजते हैं अपने अपने आरओसी के पास, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास, और जो क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स हैं कंपनीज के उनके पास। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों ही कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल करती हैं अपने अपने आरओसी के पास में। फिर बुलवाई जाती है मीटिंग मेंबर्स की एंड क्रेडिटर्स की, और मीटिंग में स्कीम को अप्रूव करवाया जाता है। जब स्कीम अप्रूव हो जाती है उसके बाद ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान से सुनो क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी क्या करती है? अप्रूव्ड स्कीम को आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर और सीजी या आरडी के पास भेजती है। ठीक है, मीटिंग के 7 दिन के अंदर अंदर। अब ये जो आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं, ये दोनों चुलबुली कन्याएं जो हैं, इनको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। क्या टाइम दिया जाता है कि अगर इनको इस रिश्ते से कोई एतराज़ है तो वो जा कर के मम्मी के पास शिकायत लगा सकती हैं। मम्मी मतलब कौन? मम्मी मतलब सीजी या आरडी। ठीक है, 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अब अगर 30 दिन के अंदर अंदर ये दोनों चुलबुली कन्याएं कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन लेकर के मम्मी के पास नहीं गई, इसका मतलब क्या मान लिया जाएगा कि इन दोनों को रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। जैसे एक लड़की की खामोशी में उसकी हाँ छुपी होती है ना, उसी तरीके से आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर सीजी के पास कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन लेकर के नहीं जाते हैं तो ये मान लेंगे कि आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर मम्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो फिर मम्मी किसके पास जाएगी? पापा के पास। पापा मतलब कौन? पापा मतलब एनसीएलटी। और अगर एक बार बात पापा के पास पहुंच गई ना, फिर आपका इतनी जल्दी रिश्ता नहीं होने वाला, फिर तो बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब क्या? मतलब कि आपको फिर तो सेक्शन 232 वाले लॉन्ग रूट अमेलगमेशन और मर्जर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 233 वाला फास्ट ट्रैक अमालगमेशन नहीं हो सकता। ओके, एंड 233 में अगर मम्मी को रिश्ता पसंद आ गया तो फिर रिश्ता पक्का कौन करेगा? मम्मी करेगी। ठीक है, कौन करेगा रिश्ता पक्का? मम्मी करेगी। चलो
ऑप्शंस देखते हैं। इट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ प्रपोज्ड स्कीम विद एनसीएलटी। अरे यार क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी एनसीएलटी के पास भेज रहे हो, नहीं जाना भाई, गलत आंसर। इट इन्वॉल्व्स गिविंग नोटिस ऑफ प्रपोज्ड स्कीम टू रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है, एंड अप्रूवल ऑफ स्कीम बाय बोथ द कंपनीज। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्कीम बाय क्रेडिटर्स द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय आरओसी। अरे आरओसी की सीजी के आगे क्या औकात है ना, गलत आंसर। It involves giving notice of proposed scheme to registrar and official liquidator and approval of scheme by both the companies, ठीक है। After approval of scheme by creditor, scheme is filed with regional director, registrar and official liquidator, बिल्कुल, and scheme is finally registered by मम्मी। बिल्कुल ठीक, रिश्ता पक्का कौन करेगा, मम्मी करेगी। करेक्ट आंसर है सी। डी में क्या बोला है, इट रिक्वायर्स फाइलिंग ऑफ प्रपोज्ड स्कीम विद एनसीएलटी। नहीं यार, नहीं जाना एनसीएलटी के पास, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। चलो चेक करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a factor to be considered while valuing a startup like ग्रोफाइन। ग्रोफाइन जैसी स्टार्टअप को वैल्यू करते टाइम इनमें से किन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना है। अब ऑप्शंस रीड कर लेते हैं पहले। पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ फाउंडर्स, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप्स एंड ट्रैक्शन। भाई अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को वैल्यू करने के लिए। लेकिन हमारी केस स्टडी के लास्ट पैरा में ना इन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी, ये देखो, इन्होंने क्या लिखा था कि द वैल्यू ऑफ स्टार्टअप इज dependent upon its future growth prospects. It is also quite likely that such a business idea has never been tested before. यानी पहले वो बिजनेस आइडिया टेस्ट हुआ ही नहीं है। इट ओनली लाइज इन रील्स ऑफ फ्यूचर। सिर्फ फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है, फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि स्टार्टअप की वैल्यू हमें क्या रखनी है। पास्ट इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है पास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनको हम ध्यान में नहीं रख पाएंगे ग्रोफाइन जैसी स्टार्टअप को वैल्यू करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन। बाकी तीनों फैक्टर्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। चलो चेक करते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर आते हैं। ग्रोफाइन हैज इशूड इक्विटी शेयर्स टू इंडिविजुअल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹50 पर शेयर। हाँ ठीक है, 10 रुपये का शेयर 50 रुपये पे छेपा था उसने। वॉट आर द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द सेम फॉर ग्रोफाइन। टैक्स लगेगा ना IFOS में। प्रीमियम पर इशू करा है शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर की कितनी थी, 11 रुपये, ठीक है। इशू प्राइस कितने का निकला, ₹50 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ ₹39, ये क्या हुआ, ये कंपनी के लिए एक प्रीमियम एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये जो प्रीमियम होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनीज अगर अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती हैं तो ये वाला प्रीमियम IFOS में टैक्सेबल होता है। व्हाट इज सच टैक्स कॉमनली एंड पॉपुलरली नोन एज एंजल टैक्स। इस रिश्ते को इस टैक्स को क्या नाम दूं, एंजल टैक्स। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस ग्रोफाइन कैन क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम सच टैक्स। तो ये जो सेक्शन है इसमें दो कंपनीज को एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड करी हुई है एंजल टैक्स पे करने के लिए। कौन सी कंपनीज हैं, एक तो आपकी वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं इनको एंजल टैक्स पे करने से छूट दे दी। मैंने क्या बोला, छूट दे दी, ठीक है। और दूसरी कंपनीज क्या, स्टार्टअप कंपनीज। दूसरी कौन सी कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज। लेकिन स्टार्टअप कंपनीज के केस में ना कुछ और कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी होती हैं, तभी स्टार्टअप्स को छूट मिलती है। पहली कंडीशन क्या, कि एक तो ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड।
और दूसरी कंडीशन क्या, ये जो स्टार्टअप्स हैं इनकी पेड अप शेयर कैपिटल एंड जो एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर्स को इशू करने के बाद पेड अप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये 25 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या, कि स्टार्टअप्स ने इनमें से किसी भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ होना चाहिए, तभी स्टार्टअप को एंजल टैक्स के पेमेंट से छूट मिलती है। ठीक है। अब कौन कौन सी एसेट्स हैं जिनमें कि स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है? पहला आया रेसिडेंशियल बिल्डिंग, या फिर उसके अपारेंट अगर कोई लैंड है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है तो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी को लोन एडवांसेस भी नहीं देने हैं। मतलब गवर्नमेंट चाह क्या रही है स्टार्टअप से? स्टार्टअप से क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं। ठीक है। अब अगर इन्होंने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है तो प्रीमियम वाले एलिमेंट पे गवर्नमेंट का टैक्स तो बनता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स छोड़ रही है ना, तो वो ये चाहती है कि इस प्रीमियम वाले एलिमेंट से स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं और जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी पर्सनल असेट बिल्ड ना करें। पता चला इस प्रीमियम के एलिमेंट से वो अपने लिए घर खरीद रहे हैं या कोई और बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या पता चला कि कंपनी से वो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं अपने आप को, तो किसी को लोन एडवांसेस भी नहीं देने हैं, या किसी और एंटिटी में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करना। आपको अगर प्रीमियम एलिमेंट आपने कलेक्ट किया है तो उसको अपने बिजनेस में यूज़ करो ना। इससे आप अपने अपने पर्सनल असेट्स क्यों क्रिएट कर रहे हो? तो इसीलिए ये सब रेस्ट्रिक्शंस लगाई है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। शेयर्स या सिक्योरिटीज़ किसी कंपनी के नहीं खरीदने हैं, कोई मोटर व्हीकल नहीं खरीदना, या एयरक्राफ्ट, याच, या कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं खरीदना जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो। 10 लाख से कम की कॉस्ट है तो चलेगा, 10 लाख से ज़्यादा वाले यानी लग्जरियस व्हीकल्स आपको नहीं खरीदने हैं। ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टार्टअप को। और जो असेट्स आपकी सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज डी में इन वाले क्लॉजेस में प्रोवाइड करी हुई हैं, जैसे कि आपके ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टअप का बिजनेस ही इन असेट्स में डील करने का है, अगर उसका बिजनेस ही इन असेट्स में डील करने का है, या वो इन असेट्स को फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करती है तो चलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन बिजनेस के अलावा किसी और पर्पज से इन असेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और तो और एक कंडीशन उन्होंने क्या लगाई कि जिस साल में शेयर्स इशू करे हैं वहाँ से 7 ईयर्स तक के पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इन असेट्स में। मतलब 7 साल का इन्होंने लॉक इन पीरियड यहाँ पे लगा दिया। 7 ईयर्स तक इन असेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और एक फॉर्म भी फिल करना है डीआईपीपी के पास में, जो कि फर्दर सीबीडीटी के पास भी फॉरवर्ड किया जाता है। अगर इन तीनों चारों कंडीशंस को स्टार्टअप सेटिस्फाई करती है तभी स्टार्टअप को एंजल टैक्स पे करने से एग्जेम्पशन प्रोवाइड होती है। अगर नहीं करती है तो फिर प्रीमियम एलिमेंट पर इशू प्राइस माइनस फेयर वैल्यू पर स्टार्टअप को आईएफओएस में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। चलो चेक कर लो एक बार आंसर को, देखो। वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड, यानी प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनीज, ठीक है, वो इशू कर रही है शेयर्स को दैट एग्जीड्स द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर एंड इट एग्जिट्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, तो फिर वो जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी आईएफओएस में, और इस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, एंजल टैक्स। लेकिन ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी किसके ऊपर, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के ऊपर और ऐसी कंपनीज जिनको कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। गवर्नमेंट ने किसे नोटिफाई किया है, स्टार्टअप को। ठीक है। लेकिन स्टार्टअप को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कौन सी कंडीशन, एक तो वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाय डीपीआईआईटी, और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है एंड एसपीआर है वो 25 करोड़ को एग्जीड नहीं करेगी, और तीसरा इंडियन एसेट्स में उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। 7 साल का लॉक इन पीरियड लगा दिया इन्होंने और फॉर्म फिल करने को बोल दिया डीआईपीपी के पास। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
Startup Growfine is also planning to approach other investors to fund its business requirements. What specific points shall be considered while carrying out due diligence of such a startup for picking up an equity interest by a prospective investor? तो इन्वेस्टर को अगर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो उसको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ना बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि जब घर वाले अपनी मुनिया का रिश्ता पक्का करने जाते हैं ना, तो वो लड़के वालों के परिवार की ना पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब निकाल लेते हैं। वो देखते हैं कि लड़के वालों का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, लड़का कमाता कैसा है, लड़के का मतलब वो फ्यूचर में कमाएगा या नहीं कमाएगा, मेरी लड़की को खुश रखेगा या नहीं रखेगा, वो हर एक चीज़ देखते हैं लड़के वालों की। उसी तरीके से ना इन्वेस्टर को भी स्टार्टअप की हर चीज़ देखनी चाहिए। इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि भाई जो प्रमोटर्स हैं स्टार्टअप के, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो पढ़े लिखे कितने हैं, ठीक है, स्टार्टअप की ग्रोथ कितनी है, स्टार्टअप का किस मार्केट सेगमेंट को वो डील करने वाली हैं, उस मार्केट का साइज़ कैसा है, उस मार्केट में कंपटीशन कैसा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि वो जिन कस्टमर्स को डील करने वाली है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। कोई ऐसी यूनिक कस्टमर प्रॉब्लम है क्या जिसको स्टार्टअप सॉल्व कर रही हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं चलाने वाली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब कि मैंने इस स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, उसके बाद कहीं इसको कोई और तो एक्वायर नहीं कर लेगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्जिट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। चलो, तुम लोग सोचोगे यार मैम आप हर बार ये रिश्ता, शादी, इसकी बातें क्यों करती हो यार? मुझे पता है ना कि तुम लोगों का इसी में इंटरेस्ट है, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं इन चीज़ों का नाम सुनते ही। A prospective investor shall carry out due diligence before picking up equity interest in a startup. बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर को चेक कर लो, क्रेडेंशियल्स को चेक कर लो, फ्यूचर ग्रोथ देख लो, ठीक है। और क्या देखेंगे हम देखेंगे कि क्या कोई यूनिक कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा मार्केट का साइज कैसा है, ठीक है, मार्केट का शेयर कैसा है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि कोई पोटेंशियल फ्यूचर एक्वायरर्स तो नहीं है स्टार्टअप के, और कि क्या हमारे पास एग्जिट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। तो भाई साहब हमने इस केस स्टडी को भी पहुंचा दिया गोवा, पिछली वाली केस स्टडी की तरह, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो आपने इस पूरी केस स्टडी को रीड करना है, ठीक है। मैंने एमसीक्यूज़ के आंसर्स रीड नहीं करे थे, आपने करने हैं, आपका होमवर्क है। एंड दूसरा कि वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखते हो, जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते, और जितने लाइक आते हैं उससे भी कम कमेंट्स आते हैं या कमेंट आते ही नहीं है। और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार चैनल को, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, यही तो मेरा मोटिवेशन है ना यार। तो कर दिया करो यार, कमेंट क्या जाता है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कम समय रह गया है अब आपके पास में, लेकिन जितना समय है उतने टाइम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। ऑल द वेरी बेस्ट, आप पक्का से सीए बन जाओगे इस अटेम्प्ट में, ठीक है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। दिस इज सीए हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।